ट्रेडिंग आज का नया फैड। सबको इंडिया में बनना है ट्रेडर। किसी को साइड इनकम कमाना है, किसी को ट्रेडिंग का ही प्रोफेशन बनाना है। बट ट्रेडर बनते कैसे? लोगों को लगता है कि स्ट्रैटेजी से ट्रेडर बनते हैं। भैया अगर ऐसे होता है ना तो सारे के सारे लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं। इंटरनेट पे हजारों स्ट्रैटेजीज पड़े हुए हैं, कोर्सेस एंड वर्कशॉप्स के बड़े बिजनेसेस खड़े हुए हैं। इसके बावजूद 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स अ ट्रेडर? तो इसी क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढने ट्राई करेंगे थ्रू दिस न्यू सीरीज ब्रेकफास्ट विद ट्रेडर्स बाय ग्रो। I'm Praful Kulkarni. You must have seen me in other podcasts and shows, but this time I'll be in the driver's seat of the conversation. इस series में I'll be having the conversation with some of the most genuine and the seasoned traders that I personally know. हम जाएंगे traders के शहर, we'll pick them up for breakfast and we'll have a conversation over the breakfast. We'll eat, we'll talk. I might ask some uncomfortable questions which you might be very interested in knowing the answers to. I promise you this, I'm going to give you the most raw, brutal and unfiltered side of trading. The good, the bad and the ugly. The first guest we're going to have in this series is Mr. Piyush Chowdhury. पीयूष भाई ने 20 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ना आजकल के नए लौंडे जो आ रहे हैं ना ट्रेडिंग करने, उनके एज से भी ज्यादा है। I've known Piyush for some time now and he is one of the most seasoned and genuine traders. He trades basically stock futures and he is the practitioner of Elliott wave theory. And उनके लाइफ में ना काफी ups and downs हुए हैं। He has gone bankrupt. He has blown his account multiple times. इस conversation के through, I'm going to ask all those questions which will tell you guys what to do and more importantly, what not to do. So let's meet Piyush bhai and let's have a conversation over the breakfast. So Piyush bhai, thanks for doing this. It's a pleasure. It's a pleasure meeting you. It's a pleasure coming here on this. Thanks a lot. Thanks a lot. आप 20 ईयर से ट्रेड कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा था इंट्रो में, आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो आजकल जो ट्रेड करने आ रहा है उनका एज से ज्यादा है। True यार, मतलब कि now I'm feeling old. You don't look like though. But बताइए आप, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ट्रेडिंग को लेके इतना एक्सेप्टेंस भी नहीं था, इतना जानकारी भी नहीं थी। And how did you get into this? So for me trading was never like कि मुझे मतलब ट्रेडिंग सोशल एक्सेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कर रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या सोच रहा है। और मुझे ट्रेडिंग ही सीखनी थी, ये मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो चुका था। क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोफेशन उससे पहले ट्राई कर चुका था, म्यूचुअल फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डेट मार्केट्स। अच्छा, so basically like you worked in this sector before like venturing into your own trading. Basically, I started working in 2001. I worked in mutual fund distribution, debt market. In 2002, also I worked in various other companies with related to stock market only, like which were related to mutual funds and this debt market only. But eventually, I realized all this while I kept on realizing that these are not the things that I wanted to do. So now I have to do something which I want to really try within my 20s, when I'm in my 20s. I can take those chances. I can try to become something out of it. So I wanted to come and take a chance on stock markets. So उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि I want to come to मुंबई। तो मैं बिल्कुल टिपिकल उस तरीके से आया कि एक बैग लेकर आ जाते हैं मुंबई, ट्रेन करके बॉम्बे आ गए और जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। 2003 में आई केम इन बॉम्बे सितंबर, और फिर उसके बाद से आई थिंक 3 महीने बाद मुझे दिसंबर में पहला जॉब मिला केआर चौकसी में, ब्रोकरिंग हाउस में। आई वॉज अ वेरी स्मॉल डीलर, बिल्कुल जो ऑर्डर्स पंच करते हैं, बट मैं उससे बहुत खुश था कि मेरी एंट्री हो गई है स्टॉक मार्केट में। फिर 2003 से लेकर फिर मैंने उसके बाद मोतीलाल ओसवाल में जॉब किया, एमएफ ग्लोबल में जॉब किया। तो ये सब में जॉब करने के बाद आई थिंक ये सब जॉब करते करते साइड में मैंने ट्रेडिंग सीखी, ट्रेडिंग करता रहता था। आई थिंक ट्रेडिंग करना इज वन थिंग और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना दो अलग चीज़ें होती हैं। बट मैं ट्रेडिंग करता रहता था, पैसा भी बहुत कमाया उस ड्यूरेशन में। लेकिन नेट ऑन नेट तो गया ही। फिर उसके बाद 2008 क्रैश में आई लॉस्ट एवरीथिंग। आई लॉस्ट pretty much 25 lakhs, all which was all the money I had that point of time. 25 lakhs was all you had? All I had. So what was your mindset like? मतलब उस point of time पे दिमाग में क्या चल रहा था कि हाँ आपने, क्योंकि because it's one thing to lose right out
when you started. Yeah. करेक्ट, मतलब शुरू करने से ही हाँ तो सब तब समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये तो मेरी बस की है ही नहीं. But it's completely another thing when you have made good money and to lose it all. So हुआ क्या कि 2000 एक्चुअली कई सारे इस ड्यूरेशन में ना कई सारे मेरे मेजर लॉसेस भी हुए थे. जैसे 2004 में I took a personal loan and I lost that money. 1.5 lakh was the personal loan, which I lost money in 2-3 months only. 3 years का लोन मेरा 3 महीने में नुकसान कर दिया था मैंने. लेकिन उस ड्यूरेशन में जो 2004 to 2007 वाला पीरियड था, वो मेरा काफी मतलब छोटे छोटे डिप्स थे. बाय द डिप चल रहा था लेकिन ठीक क्रैश हुआ 2008 में. क्रैश 2008 में आया, लेकिन वो until then it was small corrections only. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका शादी हुआ था? No, I got married in 2007. 2007? अच्छा 2007 सितंबर. मतलब पीक पे शादी की, पीक शादी पर. के बाद डायरेक्ट? हाँ, पीक पर शादी किया. अगर 4-5 महीने शादी लेट हो जाता तो फिर शायद शादी होता भी नहीं. जब पैसे बन रहा है तो मतलब ऐसे ही लगता है कि हम ही भगवान है. पैसा बन रहा होता है ना, आप क्वेश्चन नहीं करते हो कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है. करते. जब पैसा नहीं बन रहा होता आप क्वेश्चन करते हो क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन पैसा बन रहा होता है तो आप क्वेश्चन नहीं करते हो. अभी इसमें ना एक पॉइंट है, मतलब यूजुअली दिस इज क्वाइट कॉमन इन द कोडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में. इफ समथिंग इज वर्किंग डोंट टच इट. तो अगर पैसे बन रहा है तो बनने दो. सीरियसली, व्हाई टच इट? बेसिकली उसको डिस्टर्ब क्यों करना है अगर बन रहा है तो. 920 स्टैडल ने पैसे बना रहा था, सबके लिए बना रहा था, तो लोग कर ही रहे थे ना, until it stopped working. So now people question कि क्यों नहीं बन रहा था. Everything works until it doesn't. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना जो 2008 का जो बड़ा क्रैश हुआ, both in the markets and with your trading account, what went wrong for you? So ये चीज़ ना मेरे माइंड में इतना रन कर चुकी है, मैं इस मूवी को ना कम से कम नहीं तो 5000 बार प्ले कर चुका हूँ. वो हमेशा सबके लिए होता है. सबके लिए होता है, बिकॉज वंस यू गो थ्रू द वर्स्ट केस सिनेरियो, आप उस मूवी को बहुत बार प्ले करते हो, रिवाइंड करते हो. वो ये क्या बोलते हैं, पोस्ट इवेंट ऑप्टिमाइजेशन मोड पे चले जाता है. पोस्ट इवेंट पोस्ट मॉर्टम. सो मेरे ख्याल से द वर्स्ट पार्ट वाज द लेवरेज. हर चीज की प्रोबेबिलिटी थी. उस समय तो स्टॉप लॉस तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि सर्किट ही लग गया था. द वर्स्ट पार्ट वाज लेवरेज. आई वाज जस्ट एक्सट्रीमली ओवर लेवरेज्ड. अगर बाकी सब को कांस्टेंट रखा जाए, मेरी नॉलेज को, टेक्निकल्स को, एंट्री पॉइंट्स को, सब चीजों को कांस्टेंट रखा जाए, द ओनली वर्स्ट फैक्टर वाज द लेवरेज. ओवर लेवरेज. वो सुपर ओवर लेवरेज. सुपर ओवर. कितना बनता है महीने में? महीना ऑन एन एवरेज. ओके, ये ना क्वेश्चन मुझसे जब भी कोई पूछता है ना, तो मैं महीना छोड़ दी, साल में कितना? हाँ, तो मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ कई बार ना महीने में जाता भी है. हाँ, 5-5, 10-10% चला जाता है. मैंने पूछा एवरेज. सिंस 4 साल ही हुए तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं. 10 साल के बाद शायद ज्यादा आप ऐसे बोल रहे हैं कि 4 साल ही हुए, मैं बोलूंगा नहीं. वहाँ पे लोग 6 महीने से पहले ट्रेड चालू किए और अभी ऑलरेडी लाइक कोर्सेस बेच रहे हैं. मैंने कई बार 15-20% ड्रॉडाउन्स देखे हैं. आई हैव टू टेल यू दिस इन बिफोर एनीथिंग एल्स. लेकिन रिटर्न्स मेरे कई बार रहे हैं एनीथिंग बिटवीन 30 to 55% इन मोस्ट ईयर्स. नहीं, अभी तो मार्केट में हर रोज एक्सपायरी आ गया. हाँ, तो लोगों का मोटा बन गया है. राइट. क्या बोलते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक सारी एक्सपायरी है हमारी. So I don't trade any expiry. I don't trade zero DTEs. I trade only long options, buying of options, और वो भी greater than 1 DTE. मुझे ना थोड़ा सा ज्यादा थीटा इम्पैक्ट नहीं चाहिए. तो मुझे तो ट्रेंड प्ले करना है, मुझे डेल्टा चाहिए. तो आप एक हार्डकोर एक्सपायरी ट्रेडर से बात कर रहे हैं. एंड आई यूज्ड टू बी दिस हार्डकोर एक्सपायरी ट्रेडर. मैं बोला ना, लाइक मोटो यही था, सोमवार से शुक्रवार तक का सारे एक्सपायरी है हमारी. तो हर एक्सपायरी ट्रेड करता था. बट विथ द रीसेंट इवेंट्स that unfolded, those unreal spikes, option prices, you know, like jumping hundreds of points, even on liquid counters like Nifty. ठीक है, मिड कैप में होता है, समझ सकते हैं, सेंसेक्स में होता है, मान सकते हैं. बट ऑन इंडाइसेस लाइक निफ्टी, दैट टू मल्टीपल एक्सपायरीज, बैक टू बैक एक्सपायरीज. तो उसके बाद लाइक आई हैव काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड, आई हैव slowed down and साइजिंग थोड़ा कम कर रहा हूँ, या स्प्रेड्स के साथ ट्रेड कर रहा हूँ. तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना तो शायद थोड़ा अनवायबल बन गया है अभी. बट या आई गेट लाइक वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. ट्वेंटी ईयर्स इज सच अ लॉन्ग टाइम. तो मैं हमेशा जब भी एक सीजन ट्रेडर से बात करता हूँ ना, जिनका एक्सपीरियंस 10, 15, 20 साल है, उनसे मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि फॉर यू ट्रेडिंग इज अ गेम टू थ्राइव और अ गेम टू सर्वाइव? एक्चुअली नाइदर.
neither a game to thrive, nor a game to survive. आजकल क्या होता है कि ना नए बच्चे आते हैं ट्रेडर्स, उनको लगता है फैशनेबल लाइफस्टाइल है, शो ऑफ करना है, हम 5 स्टार में जाकर रहेंगे, एक्सोटिक डेस्टिनेशंस पे जाकर वो करेंगे हॉलीडेज. दिस वाज नेवर माय ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव. यहाँ से स्टॉक मार्केट जब स्टार्ट किया तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था, मुझे गेम सीखनी है. आई वांट टू लर्न दिस, आई वांट टू लर्न हाउ टू ट्रेड, बिकॉज दिस इज वेयर आई फेल्ट कि मैं ना कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मुझे और कोई नहीं चाहिए. So This is what I love basically to it do. was out of pure passion and not for the chase of money. चेज ऑफ मनी तो बहुत टाइम तक आया ही नहीं. इफ आई टेल यू समथिंग, फॉर द नेक्स्ट ना, 5-10 वो years आया या नहीं आया वो सेकेंडरी है, बट It's- आपकी तरफ से चेस था कि नहीं? कभी भी नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं. दिस इज लिटिल हार्ड टू बिलीव, बिकॉज जो भी ट्रेडर आता है ना, मतलब जिसके साथ में मैं बोलता हूँ कि मनी इज द बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर फॉर देम, चाहे वो माने या ना माने. So for me, it was like I was playing a game which I was loving to play, and when I was winning, I was getting rewarded. तो ये मेरे लिए एक स्पोर्ट था. मैं तो इसे स्पोर्ट मानकर आया था. मैं इसे money was a बाय प्रोडक्ट, always a See, byproduct. but trading is the only game which has serious repercussions in the life outside trading. So I was not aware of it. People of my generation were not aware of it because we were among the first generation traders which India has seen. Yeah. Maybe the second generation. अभी ये थोड़ा टैबू सा ही लगता है ना. मतलब मैं जो किसी कोई ट्रेडर से पूछता हूँ ना, लाइक ही इज लिटिल हेजिटेंट टू कॉल हिमसेल्फ अ ट्रेडर, बिकॉज अभी भी इतना एक्सेप्टेंस, मतलब कंपेयर टू 10 years बैक अभी जो एक्सेप्टेंस है ट्रेडिंग को लेके Yeah. काफी बढ़ गया है. एंड अभी तो फैड बन चुका है. Yeah. But at that point of time, I can only imagine how taboo it was So to be a trader. So yeah. In fact, the only reason which I have thought about many times, the only reason it is a taboo is because a trader is afraid to call himself a trader, and that is the वो reason सेल्फ for that. इम्पोज टैबू है वो. वो सेल्फ इम्पोज टैबू है. वो इसलिए है क्योंकि हम ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते बहुत टाइम तक. तो अपने आप को ट्रेडर बुलाने वाला ना, हमें लगता नहीं है कि वी हैव रीच्ड दैट लेवल टू कॉल आवरसेल्फ अ ट्रेडर. Which, and I was also a trader probably a while, and then not a trader for a while, and become a trader for a while. So ऐसा हमारे जर्नी में बहुत रहता है. Once you found your edge, और ये कि अब मैं ना अपने गेम में रहने वाला हूँ, अब मेरी गेम से कोई बाहर नहीं कर सकता. Once you have that confidence, तो दुनिया चाहे कुछ भी करे, you will call yourself a trader. Yes. अब तो इलेक्शन चल रहा है. हाँ. कुछ इलेक्शन बेसिस पे कुछ पोजीशंस पड़े? नहीं, आई डोंट बेट ऑन इलेक्शंस. आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर. मैं इस समय कोई बेट नहीं लूंगा. अभी जो भी ट्रेडर जो 5, 6, 10 साल ट्रेड करता है ना, कंजर्वेटिव बन ही जाता है. या ऑब्वियसली, बिकॉज इंजरीज बहुत हो गई हैं बैटलफील्ड में. आप बैटलफील्ड में जाओगे ना, इंजरीज होंगी, विच इज ओके. यू शुड नॉट बी नॉक्ड आउट. आप इंजरीज लेकर आ जाओगे ठीक है, बट यू शुड नॉट डाई. दैट इज द रूल ऑफ पिच पे टिके रहना है. बैटल्स. हाँ, कहीं थोड़े डॉट बॉल्स होंगे, थोड़े डॉट बॉल्स होंगे, थोड़े मिसेस होंगे, थोड़ा Yeah. बैड टाइमिंग वाले शॉट्स आएंगे. स्पोर्ट्स बैटल दे, मतलब स्टॉक मार्केट के साथ ना ट्रेडिंग के साथ बहुत कोरिलेशन है इस 100%. बैटल्स का और स्पोर्ट्स का. You said that like you're a conservative trader and you don't bet based on news. या ट्रू. तो कभी भी नहीं किए या पहले? बिकॉज एनी न्यूबी ट्रेडर हाँ. ही थिंक्स दैट ओ मुझे अगर इसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो मैं इस पे बेट कर लूंगा. हाँ. But they know that, I mean, they'll only realize far later that they'd be the bottommost guys in that information chain. या. तो जब तक इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाता तब तक गेम हो चुका होता. या. डिड यू लर्न इट द हार्ड वे, और बहुत पहले से आप डिसाइड किए थे कि नहीं भाई मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न्स देके ट्रेड करूंगा, चार्ट ही मेरा भगवान है? नहीं, उसमें मैंने मिस्टेक्स बहुत करी हैं, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद अ ब्रोकर. तो ब्रोकर के साथ काम करने में क्या होता था कि मैंने कई बार इन्वेस्टमेंट्स करी, वो इन्वेस्टमेंट्स वर्कआउट नहीं कर रही हैं, देन सडनली लोअर सर्किट लग गया स्टॉक में, और फिर मैंने लोअर सर्किट पे डंप कर दिया स्टॉक. तो ये सब कुछ बहुत होता था. बट इवेंचुअली मैंने सीखा है कि ना मुझे आई हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे ना कोई एक अपना बेसिस बनाना पड़ेगा. न्यूज़ इज़ नॉट रियली माई थिंग, माई कप ऑफ टी. तो मुझे कुछ अपना ही बेसिस बनाना पड़ा. एंड आई वॉज वर्किंग ऑन टेक्निकल्स. मेरे टेक्निकल्स फर्म नहीं थे, बट मैं कुछ ना कुछ तो लाइन ड्रॉ कर लेता था. तो I like this about, okay, I like this about, professional traders. They say that this is not my cup of tea. They never go out there and say that this doesn't work or this doesn't work. हाँ. And ये नए ट्रेडर्स के पास एक रहता है कि हाँ ऐसे ही ट्रेड करना है, ऐसे ही करना है, बट there is no rule. There's no There are 100 different ways to make money. You just need to accept that this is not my cup of tea. Correct. That is very important. Some of the most successful hedge fund managers, some of the most successful traders, some people call them as they are the examples of survivorship bias. Do you consider yourself a case of survivorship bias? Do you consider yourself lucky that you have been able to survive this long in the markets? Actually, I would not consider myself lucky by much, in the sense of surviving from the market.
but I would consider myself lucky in the sense that I got the right path when I sought for the right path. In the sense that when I was probably looking for a quest for knowledge or something, तो मुझे एलियट वेव्स का रास्ता मिला, या फिर ट्रेडिंग एल्गोस का रास्ता मिला, या फिर मुझे कोडिंग सीखना और वो सब कुछ बेसिकली मुझे थोड़ा अर्ली स्टेजेस पर ये सब कुछ मिल गया. इफ यू आर सीकिंग अ पाथ एंड यू गेट द पाथ, इवन दैट्स अ ब्लेसिंग. आपकी अगर किस्मत में सेब खाना लिखा है तो ऐसा नहीं है कि सेब आप पेड़ से आपके पास चल कर आएगा. वो उसका मतलब यही है कि आप पेड़ तक जाओगे और सेब वहां पर मिलेगा आपको, बस. That is the only thing. Very well said. So that is the only blessing that you can have. सेब आप तक नहीं आएगा. Now, Piyush bhai, like you said that you were lucky enough to find the right guidance in the early stages of trading. Even after that, how long were you in losses or at break even without making any profits? Pre 2010 का तो मैं एरा टच भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ना बहुत वो लक ड्रिवन था पूरा. उसमें मैंने जितना पैसा कमाया सब गंवाया, और अकाउंट ब्लो तो मेरा आई थिंक 5, 7, 10 टाइम्स बहुत बार किया है मैंने. 5, 7, 10 times? 10 टाइम्स, हाँ. क्यों? हिम्मत कैसे आई 11वीं बार ट्राई करने के लिए? एक्स्ट्रा नॉलेज. आप हमेशा इफ यू ट्राइंग समथिंग न्यू, मतलब आप कुछ महीने की नॉलेज के बाद फिर से ट्राई कर रहे हो, कुछ नया चीज ट्राई कर रहे हो. तो बेसिकली बीट होना एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. बेसिकली क्या था ना कि हम अनचार्टेड जोन पे चल रहे थे. तो एट एवरी स्टेप ये मुझे लगता था कि मुझे ये चीज काम करेगी, और फिर मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता था. मतलब you had accepted that cost of experimentation. कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन तो मैंने मेजरली बिफोर 2010 तो मेरा मतलब कि वो एक्सपेरिमेंटल फेज ही था. मतलब मैं ऐसे था कि आई वाज लिटरली एक्सपेरिमेंटिंग. This is something which majority of the traders go through, है ना? मतलब because trading is not such an accepted profession. हाँ. And उसके ऊपर कुछ unforeseen events हो जाता है and a trader loses a big amount of money. He can't even go back and talk to anybody. So how well do you think having a well-knit community of friends who are into the same profession helps you as a trader? ट्रेडर कनेक्ट्स ओनली विद द ट्रेडर, नो वन एल्स. तो अगर इसलिए ना ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं, आई नेवर मिस देम. ट्रेडिंग मीटअप्स जितने भी होते हैं, बिकॉज आई नो कि मैं चाहे 3 महीने बाद मिल रहा हूँ सबको, विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. एंड यू कैन लिटरली से कि यार मेरा इस मंथ में ना 5% ड्रॉ डाउन है. तो वो कहेगा कि किस लिए ड्रॉ डाउन? मैं कहूँगा कि यार ना ट्रेंड नहीं आ रहा है, मुझे पिछले 3 महीने से ट्रेंड नहीं मिल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू ट्रेड वेल. तो कहेगा ठीक है, थोड़ा सा ना स्केल डाउन कर ले, या फिर ये वाला टाइप का स्ट्रैटेजी ट्राई कर ले, मेरा इस स्ट्रैटेजी में पैसा बन रहा है, तो यू कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस. तो ट्रेडर ओनली हेल्प्स द ट्रेडर. अब ट्रेडिंग ना एक प्रोफेशन में टैबू इसलिए भी है कि ना ये इकोनॉमी में कुछ करता नहीं है. तो सबको लगता है कि ट्रेडर है या नहीं है, इकोनॉमी के लिए तो कुछ नहीं कर रहा. आपस में लड़ रहे हैं हम लोग, आपस में लड़ रहे हैं, किसी का पैसा किसी के जेब में. हाँ, बस जीरो सम गेम तो थियोरेटिकली है, वैसे तो नेगेटिव सम गेम ही है. ये इसके ऊपर ना लाइक आई नो सम ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स जो आते हैं वो बोलते हैं कि हम भारत से गरीबी मिटाएंगे सबको ट्रेडर बना के. वो हो नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है. नहीं, वो पता है, बट पीपल बाय दैट. आपने जब स्टार्ट किए थे ना, तब से आपका कैपिटल कैसे ग्रो हुआ? So how much did you start trading with when you started first? Between 2010 2015, let's start from there. तो वहाँ तब तो ना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 lakhs were enough to start trading. आप चाहे 1-2 लॉट कर रहे हो, you were able to start the trading. Start वहीं से किया, क्योंकि तब because I was also providing those advisories, तो कुछ जो भी पैसा सेव होता था वो ट्रेडिंग में I started putting in. But then I never used to bet on every random pattern, every random event. I used to wait for only the patterns that or setups that I had studied. तो वो चाहे सेटअप महीने में मुझे एक बार मिलेगा, मैं वही ट्रेड करूँगा. आई वॉज ओनली ट्रेडिंग ऑन दैट. धीरे धीरे करके वो कैपिटल 10 lakhs 25 lakhs तक पहुँचा. फिर आई थिंक 2015 ऑनवर्ड्स जब तक मेरा सारे सिस्टम्स कोड होना स्टार्ट हो गए थे, बाय देन आई हैड स्टडीड अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम्स. एटलीस्ट 2 मेरे ट्रेडिंग सिस्टम्स पूरे बन गए थे, मोमेंटम्स और मीन रिवर्जन्स, जो मैं आज तक ट्रेड कर रहा हूँ उसको और रिफाइन करके. इनफैक्ट जो मेरा मोमेंटम मीन रिवर्जन सिस्टम्स है वो तो दे हैव बीन विद मी फॉर द लास्ट 10 years, ऑलमोस्ट 8-9 years. तो वहाँ से जब मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस भी स्टार्ट हुआ, और फिर मैंने वहाँ से स्केलिंग अप भी स्टार्ट किया. अभी आजकल के जो पोस्ट कोविड का जो ट्रेडिंग का वेव जो आया है, ट्रेडिंग का जो बूम आया है, तो यहाँ पे तो लोग 1 महीने क्या प्रॉफिटेबल हो गए, जॉब छोड़ के फुल टाइम करने शुरू करते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेयर मिनिमम कैपिटल दैट वन नीड्स टू हैव to trade for a living
फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन जैसे लेने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? मिनिमम कैपिटल सी आजकल के एरा में ना, इफ यू आर इन अ टियर 2 टियर 3 सिटी, then maybe you can live with a smaller cost of living, then maybe a 25-50 lakh is still manageable. 25 lakhs 25 to 50 lakh, हाँ, उससे कम पे तो आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. people don't want to hear this. I promise you this. हाँ. मैं जब भी मतलब मैं I've been a guest in some other podcasts as well, shows as well, तो जब भी मैं जाके ये बात बोलता हूँ मिनिमम 40 लाख होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, people start shitting on me. क्या बात कर रहा है, इसका मतलब है सिर्फ अमीरों का गेम है. भाई हाँ, ट्रेडिंग इज अ रिच मैन्स गेम, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट. सी मैं ना उसका रीज़न भी बताता हूँ कि why 25, why 50. If you are now under 25, under 20 lakhs, say something like that, आपने सपोज महीने का, साल का 20%, 25%, 30%, 100% तो हो नहीं सकता है. 100% का तो एम नहीं रख सकते हो आप. अगर स्टेबल रखना है तो 20-30%, 40% कैन बी योर स्टेबल, 30-40-50% कैन बी योर स्टेबल गेम. और उस पे इनकम पर फिर आपका ड्रॉ डाउन भी है, सिर्फ स्ट्रेट अवे प्रॉफिट्स तो होते नहीं हैं. फिर आप उसमें कुछ और स्ट्रैटेजीज भी मिक्स करोगे. कुछ ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज होंगी. मे बी यू स्टार्ट विद ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, डायरेक्शनल, वॉल बेस्ड, व्हाटएवर. तो आपका नेट ऑन नेट जो प्रॉफिट का और ड्रॉ डाउन वाला जो मिक्स बनेगा ना, वो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कैपिटल कितना चाहिए. रिवर्स महीने का अराउंड 3% आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से एक डिसेंट लाइफ लीड करने के लिए बेसिकली वो भी गलत थॉट है, क्योंकि उसमें से भी टैक्सेस जाएंगे. टैक्सेस भी तो अभी डिडक्ट करने हैं हमें. वो तो कभी कोई कंसिडर नहीं करता है. अभी टैक्सेस भी पे करने हैं आपको, और आपको ड्रॉ डाउन फेज भी करना है. आपने मई मंथ का आपने मार्च में बहुत पैसा कमा लिया, और आपका अप्रैल में मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आ गया, तो आपने जो मार्च तक जो कमाया है एफआई का, वो उसका टैक्स पे करना है. उसका टैक्स पे करना है अभी, वो भी आपके कैपिटल में से जाएगा. सो वो सब कैलकुलेशन लोग करते नहीं है. बेसिकली वो सब जो होता है, हमें एक्सपेंसेस को साइड लाइन करके रखना पड़ता है. तो 25-50 तो आई थिंक बेयर मिनिमम इज अ सर्वाइवल गेम. बट आपको अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजीज डाइवर्सिफाई करके रखनी है, डिफरेंट टाइप का गेम रखना है, और ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग फॉर लाइफ करना है, तो आपको हायर द बेटर, मोर द मेरियर. बेसिकली दैट इज द वे. If you are starting up in your 20s, then maybe 25 to 50 lakhs is still manageable. आपके पास रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहती, नहीं है कम रिस्पांसिबिलिटी. रहता है. हाँ. तो पीयूष भाई, आपने 1 लाख से स्टार्ट किए, जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो हुआ, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी हुआ. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो होता ही है. वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन में होना अलग है, और एक एक्टिवली लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करते हैं ट्रेडर्स. जैसे कि मतलब दे हैव वन गुड ईयर, दे सडनली स्टार्ट बाइंग लग्जरी कार्स, एंड अभी तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो वही बिक रहा है. द मोमेंट समबडी सेज ट्रेडर, लाइक लाइफस्टाइल दिखाना बहुत जरूरी है. लाइक व्हाट, हाउ हैज योर लाइफस्टाइल इन्फ्लेटेड? सो माय लाइफस्टाइल हैज बीन ओनली टुवर्ड्स द गुड पार्ट ऑफ इट. मतलब कि अच्छा खाओ, अच्छे साफ तरीके से रहो, अच्छे तरीके से बेसिकली रहना सहना पर गया है. खाने की बात कर रहे हैं, अच्छा खाना आ गया. सो यू आर नॉट too passionate about, luxury cars? No, I've never been into luxuries. In fact, for me, the thing is, if I don't need it, I will not buy it. Need is the need and comfort. So I am always oscillating between need and comfort. Comfort होना चाहिए, मतलब comfort is the thing. Need पर तो बिल्कुल कोई नहीं रह सकता है. As a trader, आप क्या need basis पर रहोगे? तो need has to be there, but then you buy a little good things in that need pack. आपको watch चाहिए, तो आपको watch लो, लेकिन एक अच्छी सी watch ले लो. But then buy just one watch or 2 watches, that is enough. So bas that is it. Not like I would have 10 watches. So my thing is that I'm in that sense I would buy a good thing, but I'm still a minimalist. So until unless I need it. A lot of traders that I know, they're all minimalists. क्योंकि वो जो ट्रेडर का जो वो innate quality है ना, हर चीज में risk reward देखना, वो आ जाता है. तो when you know that, oh, I'm spending this much, you'll ask like, what is the utility that I'm getting from it? I'm telling you from my personal experience, so most of the traders that I meet are some of the most frugal, chindi type लोग हैं. अच्छा, I'm not like, frugal. That's not a word to be used, but I'd still go out and say it because मेरे को मेरे फ्रेंड्स जो पता है ना, जो ट्रेड करते हैं, उनको देखेंगे तो ऐसे लगता है कि कौन सा हॉस्टल में रहता है, बट उसका ट्रेडिंग इनकम देखेंगे तो करोड़ों में कमा रहा है. नहीं, ऐसे मैंने देयर आर अ लॉट ऑफ सच पीपल हु लीड वेरी सिंपल लाइव्स and who earn a lot of money, but that is their mindset. The way my mindset is कि अगर मतलब कि you remain good, remain comfortable, but एक level के beyond ना value for money भी एक concept होता है. What you are paying for it, whether you are getting that much value out of it or not. सबका अपना luxury का अपना own definition रहता है. तो let me understand what's your definition. तो
What's the luxurious thing that you own right now? Watches, maybe. Some most luxurious thing would be diamonds for my wife. That is it. That would For be yourself? for myself, nothing. For myself, I really don't buy anything luxurious at all. I don't have the मतलब मेरा मुझसे I don't have that liking for such expensive things at all. If I like something, I know for a fact that if I want to buy something, I would go to a store and buy it without looking at the price. मुझे आइडिया है डायमंड्स आपने कब खरीदे होंगे. टेल मी लाइक इफ आई एम रॉन्ग. हाँ. आपका एक बहुत खराब दिन गया और मार्केट का गुस्सा आपके वाइफ पे उतार दिया और अगले दिन आपको डायमंड खरीदना पड़ा. No, that way I have been a very temperamentally calm person. But diamonds have been bought over the years. अच्छा. For me, when I go to a store, I buy things without looking at the price. मतलब कि वो जब बिल पे कर रहे होते तब मुझे पता चलता है कि अच्छा इसका इतना प्राइस था. I don't look at the price क्योंकि मुझे पता है कि क्या रेंजेस होंगे. And you probably before entering the store you know like what you're getting yourself into. हाँ. Like एक बजट होता है हाँ. माइंड में, उसमें हो जाता है जनरली, उसके प्लस माइनस 5, 10,000, 20,000 इतने में हो जाता है सब कुछ. मतलब if I go somewhere तो इतने में, so that is all about it. But I am never like throwing money on something which I don't need or throwing money just to I don't have any such ego to satisfy myself. 10 साल like you have spent in the markets without making a dime from the markets. तो Yeah, absolutely giving the time in fact. एक्चुअली मार्केट को पैसे देके 10 साल आपने किए हैं. हाँ. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो लैक ऑफ पेशेंस जो है वो कैसे एक्ट किया था? ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे लाइक यू स्टार्टेड डाउटिंग योर डिसीजंस और आपको पता था कि हाँ यार दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर, जाऊंगा मैं, पहुंच जाऊंगा कभी ना कभी. अंदर से तो ये था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था. रास्ता मुझे बहुत टाइम के बाद मिला. आई वेंट टू शिरडी एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. आई वेंट टू शिरडी और उसके बाद मैं शिरडी में मतलब कि मैं ऐसे प्रे करके आया. वहाँ पर शिवलिंग वाला जो एरिया है वहाँ पर प्रे करके आया कि मुझे कुछ रास्ता दिखाओ. बेसिकली दिस इज़ अबाउट 2010. और मैं जब घर आया तो ऑब्वियसली ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ वीक्स के बाद मुझे एक अपनी पुरानी एलियट वेव बुक मिली बेड बॉक्स में से, जो मुझे 2006 में मैंने बाई की थी. कभी पढ़ नहीं पाया था क्योंकि डिफ़िकल्ट थी तो मैं पढ़ता भी नहीं था. ईजी बुक्स पढ़ लेता था और पैसा भी बन रहा था तो इतना लगता भी नहीं था कि उसको पढ़ने की ज़रूरत है. तो वो सब भी किया. और फिर उसके बाद मुझे ट्रेडिंग एल्गोज़ का कहीं से इनवाइट आया, लिंक्डइन से ग्रुप ज्वाइन करने का. फिर मैं 1-2 मीट्स में गया तो मुझे वहाँ पर भी ब्रोकर्स ने ट्रेडिंग एल्गोज़ के बारे में बात करते थे सब लोग. तो मुझे लगा ये भी एक डायरेक्शन है पिक करने के लिए. सो आई वाज बेसिकली द आस्क बिलीव रिसीव वाला एक फैक्टर होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. तो उस फेज में था मैं. आई हैड आस्क्ड, नाउ आई हैड टू बिलीव एंड आई वाज रिसीविंग द सिग्नल्स एंड आई हैड टू नाउ एक्ट ऑन इट. तो डार्केस्ट मोमेंट्स तो बहुत थे, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं से रास्ता भी मिलता गया. उस डार्क मोमेंट्स में डिड योर ट्रेडिंग लाइफ अफेक्ट योर लाइफ आउटसाइड ट्रेडिंग? कभी ऐसे हुआ? लाइफ आउटसाइड ट्रेडिंग तो डेफिनेटली गेट्स अफेक्टेड बिकॉज इन 2010 माई बॉयज़ वर बॉर्न. सो एवरीथिंग वाज देन फोकस्ड ऑन द बॉयज़ कि अब मुझे ना, अब जो है मुझे ठीक से करना है. अभी तक वो एक्सपेरिमेंटल फेज था, वो निकल गया. अब थोड़ा मैच्योर्ड हो गए, अभी थोड़ा सा ठीक से रिस्क समझकर. रिस्पांसिबल. अभी तक मैं क्या करता था, मतलब आई हैड मेड ऑल द मिस्टेक्स इन द बुक. सारे रॉन्ग सेटअप्स ट्रेड कर चुका था, सारा लेवरेज ओवर लेवरेज कर चुका था, स्टॉप लॉसेस को एडहेयर कभी किया नहीं था, एवरेजिंग ये सब कुछ कर चुका था. तो बेसिकली आई हैड लॉस्ट मनी इन ऑल पॉसिबल वेज. तो अब मुझे लगा कि अब मैं जब वो सब मिस्टेक्स कर चुका हूँ तो नाउ इज द वे टू फाइंड द राइट पाथ. तो उसके बाद से मतलब टू लुक फॉर द राइट पाथ स्टार्ट हुआ. बट हाँ, फिर रास्ता भी मिलता गया धीरे धीरे. चलो पीयूष भाई, अभी ना कोई एक नया बंदा अभी आ रहा ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको आपको 4 स्टेप में बताना है कि भाई ये करो कि यू विल बी सॉर्टेड टू अ सर्टेन लेवल. तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कोई गारंटी नहीं कर सकता, बट व्हाट वुड बी योर 4 or 5 logical steps in which a person who's entering into the markets with the hope of becoming a professional trader should take? So first thing is method. आपका जो भी टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है, मेथड है ट्रेडिंग का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए. मतलब वो 3 महीने में नहीं बनेगा, 6 महीने में नहीं बनेगा, 1 साल में भी शायद बन जाएगा. अगर आपने कहीं अच्छे सोर्सेज से सीखा है तो बन सकता है. आपको अपने आप को 1, 2, 3 साल देने पड़ेंगे टू लर्न ट्रेडिंग प्रॉपरली. फिर ट्रेडिंग को सीखने के बाद जब आपका उस सिस्टम पर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट होता है तो आप थोड़ा सा पैसा से
लगाओ, ट्रेड करो, और लॉसेस के साइकिल्स बनेंगे लेकिन वो लॉस बेरेबल होगा स्मॉल कैपिटल पर। उस टाइम पर आपको अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में लूप होल समझ में आएगा कि आपका लूप होल क्या है, वेयर इज़ योर वीकनेस। क्या आप बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाते हो, और डू यू स्टार्ट इमेजिनिंग द वर्स्ट केस सिनारियो द मोमेंट इट स्टार्ट्स डिपिंग ऑन नेगेटिव M2M। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो बस हमेशा अपना स्टॉप लॉस का ही सोचते रहते हैं। तो कहाँ है आपका लूप होल, फिर आप अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो सेकंड स्टेप है, लेकिन वो एक स्मॉल कैपिटल पर टेस्ट किया जा सकता है, स्मॉल कैपिटल पर फर्म किया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है। वंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी बन जाए आपका, फिर मेथड बन जाए, तो उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर आपका ये भी होना चाहिए कि आपको अपना मेथड का जो है ड्रॉ डाउन साइकिल्स जो है समझ में आने चाहिए। और उस ड्रॉ डाउन में आप कैसे सर्वाइव करोगे, तो आपके पास उतना सेविंग सेपरेट होना चाहिए। तो वो सब कुछ जो है यू हैव टू टेक केयर। आई वुड से 3 थिंग्स गो टुगेदर, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ गुड ट्रेडर। आपको, सिंस ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग एज अ जॉब, आप जॉब में जा रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपको देखता है, यहाँ पर आपको अपना टेक केयर खुद करना है। तो 3 चीज़ों पर आपको अलग से फोकस रखना पड़ेगा। गुड डाइट एंड एक्सरसाइज और अ वर्कआउट रिजीम, चाहे वो साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, आपका एक वर्कआउट रिजीम जरूर होना चाहिए, फिजिकल वर्कआउट रिजीम, और प्ले अ स्पोर्ट। A good diet, healthy diet, natural homemade diet, and third is good sleep cycle. Good sleep cycle is absolutely immensely important. अगर आप अच्छे तरीके से सोओगे नहीं तो आपका रिस्क असेसमेंट will go down the drain. 100%. तो इस सीरीज का मोटो है to present the profession in its raw and real form. तो आपका स्टोरी एंड आपका जर्नी, आपका अप्रोच, आपका लाइफस्टाइल सुन के मज़ा आया। And as usual, I always have fun having conversation with you, and I hope the breakfast was good. Breakfast was awesome. और मुझे जो मेरा जो मानना है, and I think really, and I really feel that, and I really love it that you are hosting it, that you are the host here, because एक genuine trader host कर रहा है, वो genuine trader के साथ connect अलग होता है। तो मतलब I'm really loving the show. So this can be the probably the कॉफी विद करण का एक नया रिप्लेसमेंट है हमारे पास, एक ब्रेकफास्ट विद प्रफुल। तो एक हमारे पास एक बिल्कुल एज आ गया है ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए। दैट इज ग्रेट, दैट इज एन ऑसम अपग्रेड। तो फाइनली पीयूष भाई, आपके लिए ग्रो के टीम की तरफ से वी हैव अ हैम्पर फॉर यू। ओह वाओ, प्लीज। थैंक्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज प्रीटी हेवी मैन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.